जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावम्। कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। परमानन्दसंयुक्तं निर्विकारं निरामयम् ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम्। आप सौ पासे पीडीएफ फाइल हशे ज, એટલે પોતાની પાસે જે પીડીએફ છે ફાઇલ એ આપ ઓપન કરીને એમાં જોજો સીધા આપણે 15મો શ્લોક અને 15માંથી 19મા શ્લોક સુધીનો પાઠ આપણે કરીએ, જેના ઉપર આપણે 3 દિવસ શુક્ર શનિ અને સોમ 3 દિવસ આપણે વિગતવાર ચર્ચા અધ્યયન સ્વાધ્યાય આપણે કરેલા છીએ। એના મૂળ આધારમાં આપણે આ 4-5 શ્લોકો હતા। નિર્વિકલ્પ સ્વાનુભવની દશામાં જે સ્વભાવ ભાવ, જે સ્વરૂપ ભાવ, જે ત્રિકાળ ભાવ, જે જ્ઞાયક ભાવ અનુભવમાં આવે છે, વેદનમાં આવે છે, સંચેતનમાં આવે છે અને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર આ ત્રણેય રૂપે પરિણતિમાં જે સંવેદનમાં આવે છે, સ્વસંવેદનમાં આવે છે, ભોગવટામાં આવે છે, એવો ઈ જ્ઞાયક સ્વભાવ ભાવ કેવો છે એને માટે 16 વિશેષણો આમાં હતા। 16 ને આપણે ચર્ચા કરી છે અને આમાં તો જાણવામાં આવતો, વેદનમાં આવતો એવો જ્ઞાયક સ્વભાવ ભાવ એને પરમ બ્રહ્મ કહીએ, જીન પુંગવ કહીએ, પરમ તત્વ કહીએ, પરમ ગુરુ કહીએ। ઈ સ્વભાવ ભાવ દૃષ્ટિમાં, અનુભવમાં, વેદનમાં આવતો જે જ્ઞાયક સ્વભાવ ભાવ છે, સંચેતનમાં આવતો જે જ્ઞાયક સ્વભાવ ભાવ છે, એને માટેના 16 વિશેષણો હતા આમાં પરમાનંદ સ્વરૂપ। બૃહદ્રવ્ય સંગ્રહની 56 નંબરની ગાથાની ટીકામાં એને આધારે જે આપણે 65 અને 3 એકંદરે કુલ 68 પોઈન્ટ્સ આપણે જે જોયા છીએ એ બધા 68 પોઈન્ટ્સ શુદ્ધોપયોગ રૂપ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનના પર્યાયવાચી, એટલે એને પરબ્રહ્મ રૂપ પણ કહીએ, પરમ શિવ પણ કહીએ, એટલે ત્યાં ધ્યાનના સંદર્ભમાં હતા, અહીંયા ધ્યેયના સંદર્ભમાં છે। એટલો ફેર યાદ રાખજો, બહુ માર્મિક વાત છે।
આમાં જે ચાલે છે એ જાણવામાં આવતો, વેદનમાં આવતો, ધ્યાવવામાં આવતો એવો જે ધ્યેય સ્વભાવ કેવો છે એ ધ્યેય સ્વભાવના પર્યાયવાચી આમાં આવ્યા. અને બૃહદ્રવ્ય સંગ્રહમાં જે વાંચી ગયા એમાં ધ્યાન જે શુદ્ધોપયોગ રૂપ ધ્યાન છે એ ધ્યાનના પર્યાયવાચી કયા હતા એના બધા 68 નામ જુદા જુદા આવ્યા. જો કે ધ્યાન અને ધ્યેયના બંનેના અભેદ પરક જ એ બધા નામો હતા. પરમ સમય સાર સ્વરૂપ છે, પરમ વિજ્ઞાન છે, આ બધા જે આવ્યા હતા એ કેટલાક વિશેષણો એમાં ધ્યેય સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરનારા, કેટલાક તો એમાં ધ્યાનને સ્પષ્ટ કરનારા, શુદ્ધોપયોગ રૂપ ધ્યાન, નિર્વિકલ્પ સમાધિને સમજાવનારા એવા. આવી રીતે આપણે આ બેઉ વચ્ચે જે આંતરો છે એ આંતરો બરાબર ધ્યાનમાં રાખીને આ વિષય આપણે સમજવું જોઈએ. ખ્યાલ રાખજો, આ બહુ માર્મિક વાતો છે બધી. કેમ કે જરાક પણ ધ્યાન આમ તેમ જાય તો બધો વિષય માથા ઉપરથી સાવ વહ્યો જાય, જરાય આમાં પછી એકાગ્રતા ન રહે. એટલે આ જે આપણે મમળાવીએ છીએ, આજે આટલો વારંવાર જે એના ઉપર પિષ્ટ પેશન દળેલું દળવાનું જે કામ કરીએ એના પાછળનું કારણ આ છે કે એનું મૂળ બંધારણ આપણા જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ. ને તો બાકી તો ભાઈ સાંભળવા માટે તો સાંભળી લીધું અને ભૂલી ગયા એ તો સ્વાભાવિક છે. કેમ બંબઈમાં રહેનારને ગુજરાતી નથી આવડતી? हाँ, चलिए कोई बात नहीं. परमानंद स्तोत्र के अंतर्गत ध्येय स्वरूप के पर्यायवाची नाम आए. बृहद्रव्य संग्रह में 68 जो नाम हम आप लोगों ने पढ़े हैं उनमें कुछ नाम तो ध्येय संबंधी है और कुछ संज्ञाएं ध्यान संबंधी है, शुद्धोपयोग के ध्यान को स्पष्ट करने वाले हैं. बस ये अंतिम बात मैं कर रहा हूं, बराबर ध्यान रखना. बराबर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पहले श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर आगे आगे की श्लोक हम आप लोग लेंगे. पहले इन 5 श्लोकों का पाठ करते हैं. अपने पास है, आप लोग निकालिए और देख लीजिए उसको. यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधितः स एव परमं ब्रह्म स एव जिनपुङ्गवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरुः स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः स एव परमं ध्यानं स एव परमात्मकः स एव सर्वकल्याणं स एव सुखभाजनम् स एव शुद्धचिद्रूपं स एव परमं शिवः स एव परमानन्दः स एव सुखदायकः स एव परमज्ञानं स एव गुणसागरः. वही परमानंद है, वही सुखदायक है, अनंत सुख का दाता है, वही परम ज्ञान है. परम ज्ञान, परम श्रेष्ठ ज्ञान. जैसे अभी परमात्म प्रकाश में परलोक संबंधी बात है, कल के स्वाध्याय में परलोक अर्थात पर, उसका अर्थ किया उत्कृष्ट. लोक, लोक में लोकने में आता है, अनुभवने में आता है, वेदन में आता है. ऐसा जो ज्ञायक स्वभाव भाव है वह परलोक है. ऐसा उसका सुंदर अर्थ परमात्म प्रकाश में आया. बिल्कुल नया प्रमेय है, नया चिंतन है, अध्यात्म का अपूर्व विषय बिंदु है. उसकी भी महिमा हमें आनी चाहिए.
अरे ऐसे कोई चिंतन बिंदु नया दिखे ना तो तुरंत हृदय हमारा उछलना चाहिए, तो उसका आनंद है। बाकी हमने तो ये तो सुना है, हमने तो कई बार सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके प्रति बहुत अहोभाव आना चाहिए। हाँ? लेकिन अभी फास्ट फूड के जमाने में क्या हो गया, घर में रोज हर मिठाई बनती है, हर नमकीन बनती है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ, जहां तहां मिठाई की दुकानें मिल जाएंगी, जहां तहां नमकीन की दुकानें मिल जाएंगी। गलियों में घर कम होते हैं, नमकीन की दुकानें ज्यादा होती। हाँ, क्या कहा मैंने, समझ में आया? हाँ, खाने पीने की दुकानें, होटल ज्यादा होते हैं, लोगों को रहने के लिए मकान कम होते हैं। तो आहार संज्ञा नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, आप सोचो तो सही। हाँ? इसलिए भाई, कहने का मतलब मेरा ये है, नया विषय बिंदु जब आता है तो हमारा हृदय प्रफुल्लित तो होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा लगना चाहिए। हाँ? नाम लिए बिना मैं पूछता हूँ। हाँ, ये गर्म कपड़ों का कुछ नया फैशन निकल गया समझो, जैसे वो है ना, वो टोपा डालते हैं पीछे, पूरा स्वेटर और वो टोपा टाइप का। हाँ, अब ये जब से चला है तो हर कोई वही खरीदता है कि नहीं। बाजार में नई फैशन आती है तो हमारे घर में सबसे पहले वो होनी चाहिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए। हाँ, समझाए छे क्या कहा? हाँ, देरानी जेठानी બંને ने समझाए छे, बेउ साम सामे बैठा छो। हाँ, क्या कहा मैंने? ये नया फैशन बाजार में आता है तो हमें तुरंत चाहिए होता है। तो तत्व में कोई नई बात आती है तो वो भी तो हमारे जीवन में होनी चाहिए ना। नया प्रमेय नहीं होना चाहिए हमारे। हाँ, नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, अरे न्यू इज प्लेटिनम। क्या कहा? हाँ, ओल्ड इज गोल्ड पकड़ के मत बैठो उसको, न्यू इज प्लेटिनम। हाँ, अभी गुरुदेव श्री ने एक भाई का नाम लेकर के 2 दिन पहले ही कहा था, તમારા बाप दादा तो टोपा पहनता था ने, તમે का नहीं पहनता, ऐसा बोले गुरुदेव श्री। कि तुम्हारे माँ बाप तो टोपी पहनते थे ना, धोती पहनते थे, आज की पीढ़ी धोती पहनेगी? हाँ, अरे धोती पहनने के शर्म आती है, इसलिए तो प्रक्षाल में भी नहीं आते। प्रक्षाल करने में, अभिषेक करने में भी डर लगता है। हाँ, कहीं धोती खिसक जाए तो, ये सब पागलपन है। मतलब धोती पहनने का भी डर है, इसलिए अब रेडीमेड धोती का जमाना आ गया। हाँ, रेडीमेड। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी वेशभूषा में परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ कि नहीं, हाँ, हमारे रंग रोगान में परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमारे फोन कल्चर में परिवर्तन हुआ कि नहीं, फूड कल्चर में परिवर्तन हुआ कि नहीं, क्लोथ्स कल्चर में परिवर्तन हुआ कि नहीं, लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया कि नहीं। रोजमर्रा के जीवन में नई नई लाइफस्टाइल होती है। कैसे हम उसको अपनाते हैं? क्योंकि विषय भोगों का रस है। ऐसा लगता है कि दुनिया आगे चली जाएगी और मैं कहीं पीछे, ओल्ड एज का मैं कहीं हो ना जाऊं, मुझे भी आना चाहिए। आज देखो आप 70-70, 80-80, 90-90 साल के सब बुढ़ो लोग भी सब लैपटॉप चलाने लगे हैं, मोबाइल चलाने लगे हैं, बिल्कुल स्मार्टफोन। हाँ, कितना अपडेट है, आप सोचो तो सही। मैंने कहा था, कनाडा की एक बेन का नहीं कहा था मैंने कि मारी पासे मोबाइल नहीं, लैपटॉप है। मतलब लैपटॉप से लेस हैं हम। हाँ, कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ, कितने परिवर्तन को अपन ने अपनाया है। मेरा प्रश्न आप सबसे यही है, राजकोट से लेकर के बंबई तक। हाँ, साइंस का नया कुछ चेंजेस आ गया तो तुरंत हम स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो तत्व के मामले में, सिद्धांत के मामले में जो कोई नयापन होता है, नया तर्क, नया लॉजिक, नई बात, नया प्रमेय,
उसे अपनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या है, वो हमारी एक स्टाइल हो गई है बस पुरानी। सिद्धांत के मामले में, तत्व के मामले में जो हमारी परंपरा चल रही है, जो पुरानी परंपरा चल रही है, उससे हम हट के कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लाइफ इज ए चेंज। जीवन तो परिवर्तन का नाम है। जीवन में निरंतर परिवर्तनशीलता है, तो तत्व ज्ञान की समझ में भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए। समझना तो मूल तत्व को ही है, लेकिन समझने समझाने का ढंग और उसकी पद्धति अलग अलग होती है, उसे अपनाना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या कहा अभी? हाँ, तत्व ज्ञान का भी जो परिवर्तन है उसे अपनाना चाहिए। बराबर। चलिए, ये हो गए 15 से लेकर के 19 तक के सारे श्लोक। अब हम आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक है, आपके पास है? सबके पास? हाँ, पीडीएफ फाइल में तो होगा ही होगा। किससे पूछूं मैं? हाँ, है सबके पास कि नहीं है? कुछ लोग तो दिखा रहे हैं मुझे, टैबलेट दिखा रहे हैं। हाँ, अपने पास होवे तो अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा संकलन करके रखना चाहिए भाई। देखते ही देखते ग्रंथ ही पूरा हो जाएगा। बस अब कोई ज्यादा श्लोक ही नहीं बचे हैं, बस अभी फटाफट फटाफट पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग मैं तो रोज ही रोज कहा करता हूँ, रखिए आप अपने पास, थोड़ा सा संकलन होना चाहिए। ये जब मोबाइल इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए भाई, तब तो उसकी कीमत आएगी अपने। है तो उसकी कोई कीमत लगने वाली नहीं है। याद रखिए इस बात को, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा श्रम, हाँ, ये सब चाहिए अपने। एक एक बात ग्रहण करना चाहिए बराबर। हाँ, चलिए 20 नंबर का श्लोक है, देखिए आप। परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम सोहम तम देहमध्येशो यो जानाति स पंडितः। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, इसने बहुत सुंदर बात कही पहली दो पंक्तियों में। वो पूरी अनुभूति की, अनुभव की, आनंद की पराकाष्ठा है उसकी। अस्ति और नास्ति, अनेकांत शैली है उन दोनों पंक्तियों में। पहली दो पंक्ति, परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम। पहली पंक्ति में अस्थि का बोल है, अस्थि परक बोल है, और दूसरी पंक्ति में नास्ति परक बोल है, राग द्वेष के बिना। ऐसा। तो पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? परम आह्लाद संपन्न। ये आह्लाद क्या है? हाँ, बहुत मार्मिक बात है। मैं अभी कर रहा हूं आप लोग सभी लोगों से विस्तार करूंगा। पहले सामान्य बात देखिए आप। पहली पंक्ति में अस्थि का बोल है, परम आह्लाद संपन्न, आह्लाद से भरा हुआ, आह्लादमय। संपन्न का अर्थ आह्लादमय, उससे भरा पूरा। जैसे अपन कहते हैं जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? वीतरागता संपन्न है, सर्वज्ञता संपन्न है। मतलब आह्लाद से भरा हुआ ऐसा जो, ऐसा ठीक है, परम आह्लाद संपन्न। देखिए भाई, आनंद की अनुभूति जब होती है, जैसे उदाहरण के रूप में पहले मैं आपको बात बता दूं, पेट भर करके जब हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो पेट भर करके खाने के बाद हमें डकारें आती। तो जो डकार है, वो डकार हमें ये बताती है कि अब पेट भर गया है। ऐसे ही सुख का और आनंद का आस्वाद लेने के बाद जो ज्ञानी धर्मात्मा को जो प्रसन्नता की डकारें आती हैं, उन डकारों को आह्लाद कहते हैं।
याद रखना, एक बहुत मार्मिक शब्द है। हाँ, बात समझ में आ रही है? फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इसको स्क्रीन से मैं हटा रहा हूँ। हाँ, अभी सुनिए फिर एक बार। परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम। आह्लाद से भरा हुआ और राग द्वेष से विवर्जित, अर्थात जिसमें से राग द्वेष का वर्जन हो चुका है, राग द्वेष का त्याग हो चुका है, अभाव हो चुका है समूल। पहली पंक्ति में अस्ति, दूसरी पंक्ति में नास्ति। सोऽहं तम देह मध्येषु, ये आह्लाद से भरा हुआ और राग द्वेष से रहित ऐसा कोई दूसरा नहीं है। सोऽहं, वही मैं हूं, तम, उसे, देह मध्येषु यो जाना, देह रूपी देवालय में ही जो जाना करता है, जानता है, अनुभवता है, स पंडित, वही विद्वान कहलाता है, वही ज्ञानी धर्मात्मा कहलाता है। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने पंडित शब्द का भी अर्थ करके बताया था। 2-3 दिन हो गए, बराबर, बार बार नहीं दोहराएंगे अपन लोग। उसमें कहा था मैंने, सद असद विवेकिनी, विवेकिनी मतलब विवेक करने वाली, विवेकशालिनी। सत और असत, सही और गलत। सत मतलब उपाधि और असत मतलब हे। सत असत का, हे उपाधि का, सही गलत का, हेया हेय का, देखो हे भी कहते हैं, अहेय भी कहते हैं। सुना था आप लोगों ने शब्द एक? हाँ, सुना था? तो नोट करके कौन रखेगा? हाँ, कुछ नए शब्द आए, बराबर नोट होना चाहिए अपने पास, एक भी शब्द जाने नहीं देना चाहिए। हाँ? इतनी एकाग्रता से, इतनी विचक्षणता पूर्वक, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर के चेंबर में जब हम होते हैं, 2 मिनट की मुलाकात होती है डॉक्टर की, उनका एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होता है कि नहीं? क्या कहा मुंबई वाले? डॉक्टर का एक एक वाक्य पूछो, दिनेश भाई से पूछो, उज्ज्वला बहन से पूछो। हाँ, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे होते हैं, सलाह दे रहे होते हैं, बोलो कितनी विनम्रता से, कितनी गरज की भावना से हम डॉक्टर को ऐसा सुनते हैं जैसे गणधर भगवान तीर्थंकर की वाणी सुन रहा हो। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, अति आसन्न निकट भव्य, जैसे कोई गणधर का जीव होवे और वो उस डॉक्टर की बात सुन रहा होवे, तीर्थंकर की बात सुन रहा होवे, इतनी आस्था से उस डॉक्टर की बात हम सुनते हैं। एक भी शब्द उनका अपने ज्ञान का गेय बनने से हम उसको बचाते नहीं है। और यदि एक बार कहने से समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछते हैं, सर समझ में नहीं आया बताइए। देखो आप, कितनी गरज है, देह के रोग को मिटाने की कितनी गरज है। बस वही बात यहाँ सिद्धांत के मामले में भी समझनी चाहिए। जब हम जिनवाणी सुनते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम ज्ञानार्जन करते हैं, तो इसमें एक एक शब्द के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्या कहा था मैंने? हे या हे कहा था, हे और अहेय। तो हे मतलब जो त्याज्य है वो, बराबर, त्याज्य कहो, हे कहो, और अहेय अर्थात हेय जो नहीं है, उपाधि, मेरे लिए जो ग्रहण करने योग्य है, जो अपनाने योग्य है, वह उपाधि है। तो हेया हेय का जो ज्ञान रखता है, बराबर, सही और गलत का जो ज्ञान रखता है, अरे प्रवृत्ति और निवृत्ति का ख्याल रखता है, कौन से कार्य में मुझे प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे अभी समझ लीजिए आप, अभी 8 बजे से लेकर के कोई नई सीरियल चालू होती है, 8:15 बजे होती है,
लेकिन 7:45 से लेकर के 8:30 बजे तक स्वाध्याय में ही बने रहना, लेकिन अन्यत्र अन्य कोई भी प्रवृत्ति में नहीं जाना, तो ये विवेक भान होना चाहिए कि नहीं बोलो? ऐसा जिसे विवेक भान होता है वह समझदार कहलाता, लौकिक में भी। हाँ, अरे मनुस्मृति में तो ये कहा, प्रवृत्तिशील अप्रवृत्तिशील, कर्तव्य और अकर्तव्य, ग्राह्य और अग्राह्य, इसे समझने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान बुद्धि कहलाता है। ऐसा नहीं, वह बुद्धि कहलाती है, मतलब समझदारी जिसे कहते हैं, मतलब ओनली नॉलेज नहीं, इंटेलिजेंसी। मतलब इंटेलिजेंसी गजब की चीज है, जिसे अपन आईक्यू लेवल भी कहते हैं। तो जब स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो हम आप लोगों को बहुत ग्रहण शक्ति तीव्र होनी चाहिए। कोई नया शब्द बोला नहीं बोला, बराबर उसका हमें ख्याल होना चाहिए। काक दृष्टि बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक दृष्टि, कौवे जैसी दृष्टि होनी चाहिए। कौवा चाहे जहां भी आकाश में उड़ रहा हो, पेड़ के ऊपर बैठा हुए, फिर भी मांस का टुकड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ रोटी पड़ी हुई है, खुद का आहार कहाँ है, बराबर उसकी तरफ उसका ध्यान जाए। कौवे जैसी दृष्टि होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बस मछली बाहर आई नहीं आई, तुरंत उसको अपने चोंच में बगला ले लेता है। ये एक विचक्षणता है। काक दृष्टि बको ध्यानम श्वान निद्रा, निद्रा कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए हमारी। हाँ, ऐसा नहीं कि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे सोते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जरा सी भी आहट आई नहीं आई, तुरंत आंख खुलनी चाहिए। हाँ, कुंभकर्ण जैसी निद्रा कोई काम की नहीं है। श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, आहार कितना होना चाहिए? आहार कम से कम एक ही बार होवे, वही श्रेष्ठ आहार। हाँ, 2 बार भी खा रहे हैं, 3 बार भी खा रहे हैं, बच्चों जैसे दिन भर मुंह तो चल ही रहा है, तीव्र आहार संज्ञा है, तीव्र आहार। अल्प आहारी विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अल्प आहारी होना चाहिए, अन्यथा प्रमाद आए बिना नहीं रहे। हाँ, इसलिए ऐसे ही विद्यार्थी पंच लक्षणम, याद रखें लक्षण क्या कहा मैंने। इसको प्रवचन के रूप में मत सुनना आप लोग, ये कलेक्शंस है सब सारे पॉइंट्स, हाँ याद रखना चाहिए। काक दृष्टि बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी, हर गृहस्थी के संदर्भ में कोई संकल्प विकल्प उसको होने नहीं चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, रोटी कहाँ से बनेगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कोई विचार नहीं होने चाहिए। एक एजुकेशन जब चल रहा होता है उस समय स्टूडेंट, विद्यार्थी, हम आप लोगों का, श्रोताओं का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कई लक्षण उनमें ऐसे हैं जो हमारे में होने चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग सभी? हाँ, इतनी एकाग्रता से सुनो। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च रजयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धन। हाँ, क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया संस्कृत में? नहीं समझ में आया तो पूछो तो सही कि पंडित जी एनो अर्थ करीने बताओ। हाँ, अरे क्षण क्षण करके विद्या का अर्जन करना चाहिए, कण कण करके अन्न का संग्रह करना चाहिए। यदि क्षण का त्याग हो जाए, क्षण की कीमत नहीं समझेंगे तो ज्ञान नहीं आएगा, और कण की कीमत समझेंगे नहीं तो अन्न और धन अपने पास नहीं आएगा। क्या क्या समझाया? ये विद्यार्थियों के लिए ही लिखा गया श्लोक है, ऐसे सैकड़ों श्लोक। हाँ,
जिज्ञासा गुरुनिष्ठा च सतताभ्यास निश्चया एकाग्रता महत्कांक्षा विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें भी 5 लक्षण है विद्यार्थियों के। हाँ, अब आप लोग कहेंगे पंडित जी संस्कृत तो नहीं आती, लेकिन जिन श्लोकों का, जिन सुभाषितों का मैं अर्थ कर रहा हूँ उतनी तो बात समझ में आ रही है ना। हाँ सूरत वाला, आ बधी बाबतो समझवा जेवी छे, खूब समझवा जेवी छे, तो ज जीवन घड़ाय। हाँ याद રાખજો, આ બધી બાબતો બહુ અગત્યની છે, બહુ જરૂરી છે। કેવાનો अर्थ, बात बात ये चल रही थी आह्लाद शब्द का मैं अर्थ करना था। तो देखिए आनंद अलग है, सुख अलग। एक मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे बहुत भयंकर ठंड पड़ रही हो, जोरदार ठंड पड़ रही हो, और सुबह सुबह तो बिल्कुल समझो 7, 8, 9 डिग्री टेम्परेचर होवे, और धीरे 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 सूरज उगाया, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, और 12 बज गए, 12:30 बज गए, फटाफट खाना खा लिया और जा करके 2 घंटे धूप में बैठ गए। बोलो जैसे ही धूप में जाके बैठते हैं तो क्या फीलिंग्स आते हैं, कैसा लगता है? तो वो जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को कहते हैं आह्लाद। समझ में आई बात? वो आह्लाद केवल शब्द नहीं है, वो आह्लाद तो फीलिंग है, फीलिंग। हाँ? तो आनंद का उपभोग होने के बाद, सुख का स्वाद लेने के बाद जो हर्षातिरेक के जो परिणाम होते हैं उन्हें आह्लाद के। रोम रोम पुलकित हो जाए, उसका नाम आह्लाद। हाँ? देखो एक बात और प्रैक्टिकल कह रहा हूं, मुझे आप बताओ 3 दिन के स्वाध्याय में आप लोगों ने 68 विशेषण पढ़े, तो आह्लाद की अनुभूति हुई कि नहीं? हाँ, क्या एक कोर्स के रूप में हम लोगों ने सुन लिया? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसी अंदर से एक आनंद की तरंगे उछलनी चाहिए कि नहीं? क्या कहा कि रूटीन के रूप में सुनना चाहिए केवल। हाँ, मैं आपको ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूँ आह्लाद के बारे में। समझो कि ठंड के दिनों में गुजरात में प्रायः ऊंधियू बनाते हैं, ऊंधियू। और समझो बहू बेटी का जन्म दिवस हो, बेटे का जन्म दिवस हो, और बेटे को ऊंधियो बहुत भाता हुए, बड़ा अच्छा लगता, लेकिन माँ ने वो ऊंधियो बनाया तो सही, लेकिन बेटे को कहा ही नहीं। बस खाना खाते समय बेटा जब बैठा, अब माँ ने पूछा बेटा आज तुझे कौन सी सब्जी खाने की इच्छा थी? तो बेटा तो बोलता है कि जो भी बनी है सो, फिर सो कोई बात नहीं। तो माँ बड़े रस लेकर के उसे ऊंधियू पिरसती, और बच्चा बोलता है वाह आज तो खाना खाने में मजा आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन का नाम आह्लाद। समझाय छे? हाँ टीचर श्री समझाय छे? શું કીધું? हाँ, हमें उम्मीद थी कि 60% मार्क्स बड़ी मुश्किल से आएंगे, और हमें आ गए 90% मार्क्स। ओ हो ये जो ओ हो थाय ने एनु नाम आह्लाद छे। अब हमें तत्व की बातें सुनते 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 कान ऐसे पक गए हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ? तो आह्लाद होना चाहिए। हाँ, काटलू, काटलू गुजराती में काटलू। हाँ, ठंड के दिनों में लोग बाग खाते हैं। अब काटलू बन गया, पहली बार बन गया, गरम गरम लचका बन गया, अब वो खाने लगे हैं। वाह वाह। हाँ, कहने का मतलब मेरा ये है जो आनंद अतिरेक है, जो उसके स्वाद में जो एक प्रशस्तता लगती है, उसका नाम आह्लाद है। जिन मंदिर में आते ही से कैसा लगता है बताओ? हाँ, घरों में हम कैद होकर के बैठे हैं महीनों से, घरों में, अपने अपने घरों में, कोई 10 बाय 10
दो चार रूम होते हैं, हॉल होता है, हॉल में मन नहीं लगता है तो बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम में मन नहीं लगता है तो रसोई में जाते हैं, रसोई में मन नहीं लगता है तो थोड़ा सा गैलरी में जा करके खड़े हो जाते हैं, फिर लिविंग रूम में आ जाते हैं। वही है ना घर। लेकिन जब भगवान के दर्शन करने के लिए 8 10 15 दिन बाद जब मंदिर आते हैं और मंदिर में प्रवेश करते ही कैसा लगता है बताओ। हाँ, जो फीलिंग्स आते हैं उन फीलिंग्स को हम कहते हैं आह्लाद। समझाय छे? हाँ, अहो मने तो आ वातनी खबर ज नहोती। ऐसा होना चाहिए अंदर में से, आनंद अतिरेक होना चाहिए। हाँ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, न हमारी प्रसन्नता में, न हमारी प्रशस्तता में, न हमारी रुचि में, न हमारी प्रतिक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो हमें आह्लाद होवे तो होवे कहां से, विचार तो करो। हाँ, मुझे तो कभी कभी डर लगता है, अब यदि गुरुदेव श्री हमें हथेली पे भी सम्यक दर्शन दे देवे ना, तब भी हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो तो रोज की बात हो गई ना। एक बात याद रखना, जब काम कोई भी रूटीन बन जाता है तो उसका आह्लाद हमारा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बजार वाला समझाय छे? पंडितजी आ तो અમે તો વાત તો સાંભળી છે, આ તો કેટલી વખત તમે કરી છે, એમ ન થવો જોઈએ, અંદરમાં આહલાદ આવવો જોઈએ। हाँ, मेरे मुंह से आपने कितनी बार वाक्य सुना होगा, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हजारों बार बोला होगा ना, लेकिन जब जब भी पहली बार बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो पहली बार बोल रहे हो। आह्लाद आना चाहिए ना, रोमांच होना चाहिए ना। हाँ, अपने को कोई अचानक गिफ्ट दे जाता है, कैसा लगता है? हाँ, जो लगता है ना, उसका नाम आह्लाद है। तो आनंद की अनुभूति जो है, जो प्रशस्त प्रशस्त प्रशस्ततम, एक बात याद रखना भाई, मुझे इतना आनंद आ रहा है इस विशेषण में, तत्व की बात सुन करके हमें आह्लाद आना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए। हाँ, आत्महित की बात सुन करके हृदय प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, मन मचलना चाहिए। भगवान की बात सुनने के लिए, तत्व की बात सुनने के लिए हमारा मन मचलना चाहिए। अहो हर्ष 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 हर्ष। देखो, इंसान दो बार रोता है, गम के पलों में और खुशियों के पलों में। कभी खुशी कभी गम, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ, अब वो रोने के पल में जो रोता है वो तो पता ही है, लेकिन जब ज्यादा खुशी होती है, अधिक हर्ष होता है, तब भी आंखों में से पानी आता है। वो क्या है? वो आह्लाद और वो रोमांच। तो हमें अपने जीवन में तत्व की कोई नई बात सुनते हैं, हाँ, जिनवाणी की कोई बात सुनते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए, आह्लाद आह्लाद की अनुभूति होनी चाहिए। मैं ये मेरी आत्म प्रशंसा और लोकेशना के लिए मैं एक उदाहरण दे नहीं रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं। 84 ईयर्स ओल्ड, कितने साल की है? एक माँ जी है बंबई में, मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा। 84 ईयर्स ओल्ड, सुनना ध्यान से, 84 साल की बूढ़ी माँ जी है। अब वो निवृत्त जीवन है, उन्हें कहीं अपने स्वाध्याय और अपनी लिंक मिल गई, और वो प्ले लिस्ट में से निकाल करके दिन में 3 3 4 4 5 5 स्वाध्याय सुनती। और जिस दिन उसको विशेष आनंद आया, वो तुरंत फोन करेगी मुझे, बोले सुनील भाई आजे तो हमें आ सांभळ्યું बहु आनंद आयो, आजे तो हमें आ सांभळ्યું बहु आनंद आयो। ये आह्लाद के परिणाम होंगे कि नहीं बताओ? हाँ, रसिक भाई। हाँ, बस साहेब आ तो हमें तो 45 વર્ષથી સાંભળીએ છીએ, आ तो हमें 50 વર્ષથી સાંભળીએ છીએ। अति परिचय ते होत है बहुत अनादर भाव।
મલિયાગીર કી ભીલની ચંદન દેત જલાય. એ મલિયાગીરીની ભીલની ને ચંદનની કિંમત જ સી ને. એ તો 365 દિવસ સાંભળે છે એને એની સી કિંમત આમ તો એનો શું મહિમા આવશે એને. હા, अरे अन्य प्रांतों में हिंदी प्रांतों में अन्य प्रांतों में कई ऐसे मुमुक्षु हैं वो गुरुदेव श्री को जिन्होंने एक बार दो बार प्रत्यक्ष देखा हो और गुरुदेव श्री की बात करने वाला कोई मिल जाए तो सीधा पैरों में नतमस्तक होते. इतना अहोभाव, रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं. विचार तो करो आप. हाँ? मानो साक्षात तीर्थंकर का ही योग मिल गया होवे, ऐसा 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 कहा करते हैं. कितनी महिमा है. वो जो महिमा के परिणाम है ना उसका नाम आह्लाद. ये मैं कह रहा हूं. हाँ? अच्छा, नया कपड़ा पहनने के बाद दिन भर कितना गार्डन गार्डन होते हैं हम. हाँ? अपना जन्म दिवस होवे, बर्थडे होवे, बर्थडे. हाँ? सुबह से लेकर के रात तक दिन भर कैसी अनुभूति होती है बताओ. आह्लाद 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 आह्लाद, आनंद 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 होता है कि नहीं. तो हम आप लोग दिन में दो दो बार स्वाध्याय करते हैं तो दिन भर हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए. आह्लाद के होने चाहिए, प्रसन्नता के होने चाहिए. हाँ, बहुत गजब की बात है भाई. ज्ञान की तत्व की बात सुन करके हृदय हमारा प्रसन्न होना चाहिए. हाँ, बात समझ में आ रही है. ये एक ही शब्द में हम आप लोगों ने इतना खोलने का प्रयास कर रहे. याद रखना. हाँ, अहो मने तो आ वातनी खबर ज नहोती, हूँ तो प्राप्त पर्याय मां. हाँ, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही एकत्व ममत्व बुद्धि कर रहा था, लेकिन इस पर्याय की अवस्था तो अल्प समय की है. निरंतर प्रसन्नता होनी चाहिए. वदनम प्रसाद सदनम. दुनिया भर का टेंशन लेकर के, दुनिया भर का भार लेकर के हम आप लोग घूमते हैं, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए. हाँ, बात समझ में आ रही है. हाँ, बहुत सुंदर बातें हैं भाई. आह्लाद आह्लाद, प्रसन्न प्रसन्न रहना चाहिए. हाँ? हमारे मुंह पे तो ऐसे ताले लग जाते हैं, कोई हंसी खुशी और प्रसन्नता नाम की तो बात मानो उड़ ही गई होवे, ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, उल्लास हृदय से तत्व को सुनना चाहिए, प्रसन्न हृदय से तत्व को सुनना चाहिए. ये जो गुरुदेव श्री कहा करते हैं ये आह्लाद के अर्थ. समझाणु काई જે પણ मैं 20-25 मिनट સુધી बात करी है. हाँ, 15-20 मिनट से जो भी मैंने बात की है आह्लाद के संदर्भ में. हाँ, बात समझ में आ रही है ना. घर में नई गाड़ी आने के बाद घर का हर कोना कोना आह्लाद से छा जाता है. हाँ, घर में नई मिठाई बनती है तो आह्लाद आह्लाद आह्लाद, आनंद 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 आनंद. हाँ, ठंड के दिनों में धूप आह्लादकारी लगती है. हाँ, भयंकर ठंड पड़ी हो और गरम गरम कपड़ा अपन ने पहन लिया हो, जरा भी ठंड नहीं लगती है, आह्लादकारी लगती है. उष्मा आती है कि नहीं अपने में, वो जो उष्मा की अनुभूति है उसका नाम आह्लाद है. ऐसे एक एक शब्द का आनंद लेना चाहिए. शब्द मात्र शब्द नहीं होता है, शब्द शब्द ब्रह्म होता है. क्या कहा? शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं, शब्द तो स्वयं शब्द ब्रह्म होते हैं. इतना उसका आनंद हमें आना चाहिए. देखिए, परमाह्लाद संपन्नम, ये परम आह्लाद से संपन्न. वाह वाह, तत्व की बात सुने. देखो गुरुदेव श्री का हर वाक्य वाक्य में हा 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 भगवान आत्मा, हा 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 त्रण लोकना नाथ प्रभु परमात्मा एक परमावे छे. ये जो अंदर में जो आता है आनंद अतिरेक, इसका नाम आह्लाद. ऐसा आह्लाद हमें होना चाहिए. जीवन प्रसन्न होना चाहिए. रोते रोते में जिंदगी पूरी नहीं करनी चाहिए अपने. परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम, प्रसन्नता से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, सुख और आनंद से भरा पूरा, और राग और द्वेष से रहित,
सोअहम वही मैं हूँ, देह मध्येषु, इस देह रूपी देवालय में रहने वाला वही मैं भगवान आत्मा हूँ। यो जानाति स पंडित, जो उसे जानते हैं वही विद्वान कहलाता है, वही पंडित कहलाता है, वही समझदार कहलाता है। अरे मैं और क्या कहूँ, वही सच में जैनी कहलाता है। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे वैन कहे साचे जैन मति है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न आत्म गवेशी गृहस्थ है न जति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो अजाची लच्छपति जो। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। सुखिया सदैव ऐसे जीव संकित, ऐसा जीवन होना चाहिए। अरे ये जैन पना मिला, ये तत्व मिला, आचार्य कुंदकुंद देव जैसे देव मिले, पंच परमागमों की पद्धति मिली और महापुरुष गुरुदेव जैसे मिले, तो जीवन तो आनंद आनंदमय होना चाहिए। इसका नाम है आह्लादमय जीवन होना चाहिए। परम आह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम सो हम तम देह मध्येषु, वही मैं हूँ, ऐसा जो देह में विराजमान है उसे जो जानता है वह विद्वान कहलाता है। कोई डिग्रीधारी विद्वान नहीं होता है। इसलिए बहुत गौरवशाली शब्द है पंडित, उसके प्रति बहुत अहोभाव हमें आना चाहिए। पंडित मतलब कोई शास्त्री की डिग्री ले लिया होवे, कोई व्याख्यान करता होवे, कोई प्रवचन करता होवे, उसका नाम पंडित नहीं है। पंडित तो जो आत्मा को जाने, जो स्वरूप और स्वभाव को जाने, उसका नाम पंडित। ऐसा यह अद्भुत श्लोक, उसको झूम करके देखो भाई यार, पूरा करने में तो 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। बस अब 4, 5, 6 दिन की बात है, देखते देखते परमानंद स्तोत्र तो पूरा हो जाएगा। विगत 3-4 दिनों से जिन लोगों ने भी स्वाध्याय नहीं सुने हो, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार जरूर आप लोग स्वाध्याय सुनिए, नहीं तो बहुत बड़ी तत्व की चर्चा आप लोग मिस करेंगे। इसलिए यहाँ 15 से 19 नंबर तक के सारे श्लोकों का पाठ किया और 20वां श्लोक भी आज हम आप लोगों ने लिया है। समय हो गया है, मैं यहाँ अभी विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होड़ो। बोले दादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा